Hello dosto, welcome back to yet another new video which will be related to strategic management classes, and in this classes we will study each and every topic individually. As promised, I will be delivering strategic management classes once again from the beginning because in earlier videos there were some issues. So keeping in mind all the needs of the students, we will be starting the strategic management lectures once again. Also, this lectures will be useful for every student who studies strategic management in any course because we will be covering the topics individually and in the detailed concept. So there will be short videos for specific topics and you can watch it accordingly. So this will help you in searching for the particular topics in those videos. Okay, and let's start with our first basic lecture, which will be related to strategy and strategic management. So as you can see on the screen, we will be studying about strategy. What is strategy? You can guess what you can see on the screen. You can guess through the picture that what is meant by strategy, and you all know that what is strategy. Okay, so it is a very basic term, strategy, that is value added ideas, creative change, planning, business performance improvements, optimize, future implementation, growth, and so on, like creativity, improve vision, plan new ideas, and a lot of things. So let's come to my notes. Okay, so these are the notes which I have prepared for CMA Inter students group 2, and I have covered all these three chapters: study notes, strategic management introduction, strategic analysis and strategic planning, and formulation and implementation of strategy. And I have also covered objectives. The videos will be in English. In English. Okay, I will combine both the languages while teaching you strategic management, so it will be helpful for both the students. So as you can see on the screen, first one is study note number 8. Study note number 8 is strategic management introduction. The first topic, it says vision, mission, and objective. It is written there in our study material that it is vision, mission, and objective, but we will study it in the end as these are covered in the end. So let's start with the strategy. Integrating all organizational activities and utilizing and allocating the scarce resources within the organizational environment so as to meet the present objectives. Strategy का मतलब क्या है? It says integrating all organizational activities. First of all, जब भी आप theory subject पढ़ते हैं, so make sure that you break the theory paragraphs of anything in points and or in words to understand it better. So integrating all organizational activities and utilizing and allocating the scarce resources within the organizational environment so as to meet the present objective. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, और जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना, उनको एलोकेट करना, ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर, जिससे कि जो उनके प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव है कंपनी के वो अचीव हो सकें. ठीक है, मैं अभी इसको पढ़ाने के बाद, फीचर स्ट्रेटजी को पढ़ाने के बाद इसका एक एग्जांपल वाला वीडियो भी दिखाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि स्ट्रेटजी एक्चुअली में है क्या और वो कैसे प्रोसेस मतलब क्या प्रोसेस रहता है उसका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन्स इंटीग्रेटिंग ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एंड यूटिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग द स्केर्स रिसोर्सेज. जो बहुत ही स्केर्स रिसोर्स उनको यूटिलाइज करना, एलोकेट करना कि कैसे यूज़ करना है एक ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में, जिससे जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाएँ. सपोज करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यू. ठीक है, अब जैसे सपोज करो आपके जो CMA के एग्ज़ाम्स हैं वो हैं सपोज नहीं करना, वो है ही जुलाई 2020 में. ठीक है, वो जुलाई 20 में है. तो आपने अब एक अलग स्ट्रेटजी बनाई है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है ना. आपने एक स्ट्रेटजी तैयार करी है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है अब जुलाई 20 के लिए. पहले आप जून 20 के हिसाब से पढ़ रहे थे, जब तक एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुए थे. तो वो जो आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, अभी आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं? आपके पास ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, राइट. आपके पास क्या है? ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. सॉरी अगर दिख नहीं रहा है तो लेट मी मेक अ न्यू वन. ऑनलाइन आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, आप उससे ही पढ़ रहे हो, ये आपके रिसोर्सेज हैं, आप इसका मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो. ठीक है, आप इसका मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो. तो मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो इसी का, ये आपकी एक स्ट्रेटेजी बन चुकी है कि आपको इसे यूज़ करके आपको एग्ज़ाम्स पास करने हैं, अपने क्लियर करने हैं, राइट. तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजी. Now strategy is the knowledge of goals as it describes that how the goals can be achieved by the resources. Strategy क्या है? goals की knowledge है
कि हमें पता चलता है कि हम अपने गोल्स को, हमारे पास जो रिसोर्स है उससे कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो ये रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इससे हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। जो हमारे गोल्स हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है CM एग्ज़ाम को हमें पास करना है, ठीक है। तो इन रिसोर्सेज जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उसके थ्रू हम कैसे अपने गोल्स को पास कर सकते हैं, मतलब गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था मतलब स्ट्रेटेजी का। नाउ लेट्स कम टू फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी। There are 3 features of strategy. There are many features of strategy, but we have covered 3 because in our module there are 3 points only. So first one is long-term development. Strategy deals with long-term developments rather than routine operations. Example, innovation of new products. अगर मैं इसको आपकी बात लेके करूँ, I take an example of you, like you are studying, okay, for CM examinations, right? You're studying for CM examination and here it is written that it deals with long term development rather than routine operations. अगर आप सपोज करो आपका ये डेट आ गई 10th जुलाई, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम कब से हैं 20th जुलाई से, राइट। और आप यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद आपने स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट किया कि आपको एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर करने हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि आपके एग्ज़ाम 10 दिन बाद है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी जो आपको हेल्प करती है वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स में हेल्प करती है रादर देन रूटीन ऑपरेशन। रूटीन ऑपरेशन में वो हेल्प नहीं करेगी। अगर आप सोचो कि वो 1-2 दिन में आपको रिजल्ट दे देगी तो नहीं देगी, तो आपको लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलना होता है स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है। तो इट इज़ यूजफुल इन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट भी समझाने की नीड है। So let's start with the second point, that is well-defined roadmap. If I come to well-defined roadmap, then strategy is a well-defined roadmap for an organization, and it helps in maximizing the strength of the organization, also helps in healthy competition. Strategy क्या है? अब मैं बताता हूँ आपको स्ट्रेटेजी क्या है। आपने सपोज करो आपके एग्ज़ाम्स हैं, मैं सारा एग्ज़ाम से रिलेट करते चला जाऊँगा जिससे आपको भी ईजी रहे, ठीक है। आपके एग्ज़ाम है 20 जुलाई से, ठीक है। अब मैं जैसे देख रहा हूँ बहुत सारे, आप अगर मेरे से कनेक्टेड हैं टेलीग्राम वगैरह के थ्रू, तो कुछ एक स्टूडेंट हैं कुछ जो अपने स्टडी प्लान्स प्रिपेयर कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, जिससे उनको भी हेल्प होगा। तो उसमें कुछ स्टडी प्लान्स में क्या रहता है, स्टडी प्लान्स वो ऐसे होते हैं कि उसमें बोल देते हैं कि आपको 2 to 3 आवर्स आप पढ़ रहे हो, सपोज कोस्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। और फिर बात करें अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की, तो 2 to 3 आवर्स आप पढ़ रहे हो, आप FM पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ऐसे पढ़ रहे हो। तो इसको क्या कहते हैं, हम कहाँ पे थे, हम वेल डिफाइंड रोड मैप पे थे। तो आपने एक रोड मैप तैयार कर लिया, ऐसे आपने और भी सब्जेक्ट का बना लिया कि 2 to 3 आवर्स आपने कोई और सब्जेक्ट बना लिया, तो ये एक आपका रोड मैप बन गया, ठीक है। ये रोड मैप बन गया। ये रोड मैप बनने के बाद मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि माउस से ऐसे ही थोड़ा बन रहा है एंड आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट इट बी। एंड रोड मैप बन गया तो एक स्ट्रेटेजी बन गई आपकी, एक वेल डिफाइंड रोड मैप बन गया कि हाँ आपके पास एक रोड मैप है जिसको जो आपको फॉलो करना है, वो आपकी एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी एक आपको रोड मैप दे देती है। इट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सपोज करो अगर आप 2 to 3 आवर्स पढ़ रहे हो डेली, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन हेल्दी कॉम्पिटिशन। दूसरे लोगों से कॉम्पिटिशन अच्छा हो जाता है आपका, ठीक है। अगर आप इतनी प्रैक्टिस करोगे, इतनी ज़्यादा आपके पास रोड मैप है, तो दूसरे से आप कम्पीट अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट, अनसर्टेनिटी। स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन डीलिंग विद द अनसर्टेन इवेंट्स दैट माइट हैपन इन फ्यूचर। अनसर्टेनिटी लाइक कोविड सिचुएशन आ गई, ठीक है। अब किसी को नहीं पता था कि ये कोविड-19 सिचुएशन आने वाली है। तो इस कोविड-19 सिचुएशन के बाद आने के बाद क्या हुआ, काफ़ी कंपनीज अभी लॉस में चल रही हैं, बट कुछ कंपनीज प्रॉफिट में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही, चलो ये तो अनप्रिडिक्टेड सिचुएशन थी, ठीक है, बट उनके पास कुछ फंड्स पहले से ही रिजर्व में उन्होंने रखा हुआ था कि अगर कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिन्होंने रखा हुआ होगा ऑलरेडी, ठीक है, कि रिजर्व में रखा कि अगर कोई क्राइसिस आता है, ठीक है, और इकोनॉमी जो है रिसेशन में जाती है, तो उनके पास इतना फंड होना चाहिए कि वो अपना बिजनेस चला सकें अच्छे से, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली देखा था रिलायंस कंपनी जो है राइट शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है। तो वो पता नहीं, ये टाइम नहीं है, सही टाइम नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी लेट इट बी, वो बात की बात है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई फ्यूचर में कुछ इवेंट होने वाला है, उससे डील करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी को रोकने के लिए, ठीक है, रोक नहीं सकते, बट उसका जो रिस्क होता है,
ठीक है, रिस्क आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ख़त्म भी नहीं कर सकते, आप रिस्क मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट होता है इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। अनसर्टेनिटी एक फीचर है स्ट्रेटेजी का, नॉट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी का। तो ये अभी तक हमने पढ़ा कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ सिंपल वर्ड्स में। जो स्ट्रेटेजी होती है वो स्ट्रेटेजी ये होती है कि आपके पास प्लानिंग कैसे कर रहे हो, बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स, फ्यूचर क्या रहेगा, ऑप्टिमाइज़ करता है फ्यूचर को। ठीक है, प्लान न्यू आइडियाज़, ऑप्टिमाइजेशन, इम्प्रूव विजन, स्ट्रेटेजिक गोल, इनोवेटिंग, क्रिएटिविटी, ये सब रहता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को मिला के जैसे आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए कंपनी, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के फीचर्स क्या कहते हैं, मैं ऐसे याद करा देता हूँ। पहला लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मतलब ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्स का एग्जाम्पल दिया। इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड रोड मैप प्रोवाइड करती है। ठीक है, वेल डिफाइंड रोड मैप के बाद तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट ये था अनसर्टेनिटी। सो 3 पॉइंट आ गए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, वेल डिफाइंड रोड मैप एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए आपको हेल्प करती है। अब हम एक वीडियो देखेंगे जो आपको कॉर्पोरेट में स्ट्रेटेजी क्या होती है उसका हेल्प करेगी समझने में। लेट्स स्टार्ट। A simple definition of the term strategy indicates these are ways companies achieve their goals. The word had been originally used in the military and more recently adapted for business. It descends from the Greek expression strategia, meaning generalship or commanding an army. Both armies and companies need strategies to use their resources in the most effective way and to establish a favorable position. Over the past 5 decades, the business environment has changed dramatically and continues to evolve at a really fast pace. It is also less predictable than ever before, which makes analytical reasoning and strategic positioning even more important today. Most strategies applied by companies that are successful have 4 elements in common. 1. They are based on goals that are simple, consistent, and long-term. 2. The goals the company wants to achieve have been formulated after a deep analysis of the competitive environment. 3. They objectively consider a company's resources and exploit them in an effective manner. 4. And finally, the people responsible for achieving these goals are strong-willed and have solid decision-making capabilities. Michael Porter, the American professor at Harvard Business School, who has influenced the business world more than any other academic and revolutionized the concept of strategy, says, "Strategy is about making choices. It's about deliberately choosing to be different." That's quite straightforward, isn't it? And yet so difficult to achieve. Thousands of companies compete for a place under the sun, but only few come up with original ideas and are different. Zara, the world's largest clothing retailer, is a typical example of how different strategies can lead to success. Founded in 1975 in Spain, the successful retailer now runs over 6,500 stores in 88 countries. Its founder, Amancio Ortega, is the 3rd richest man in the world according to Forbes. So, what makes the company's strategy so successful? Zara changed the fashion industry by breaking up the biannual cycle of fashion. Its designers need only 3 weeks to have an item in stores, starting from concept to reaching the store's shelves. While other fashion retailers prepare their collections 6 months in advance, Zara locks approximately 50% of its stock by the start of the season. In this way, if a new fashion trend appears, the company can immediately react and quickly produce what customers really want and look for. If there is no demand for a certain item, Zara can simply discontinue production. Low levels of stock and a frequently updated offering reduce the company's risk. This makes customers want to visit Zara shops frequently, given that the collections are changed relatively quickly. Another key element in the company's strategy is that Zara produces its clothing mainly in Spain and in Europe, where we can find the larger portion of its retail stores. This enables shorter lead times and faster replenishing of stock, with turnaround as short as 2 weeks. Higher production costs are offset by the reduced amount of money the company spends on advertising. This is a strategy model that is original, hadn't been implemented before, and a true success story. Things aren't always as rosy, though. Sometimes, companies make wrong strategic choices and struggle to adapt to a changing environment. Kodak is a well-known example of a company that could not adapt to the changing business circumstances. In the late 19th century, the American company invented the roll film, which easily replaced the old photographic plates. The company was perceived as an
Okay, let it be. So we have to understand what the strategy and how this take place. So as you can see on the screen, we have taken an example of Zara. ठीक है, तो ज़ारा में ये जो इनकी स्ट्रेटेजी थी ये फॉलो करते हैं, वो उसने बताया कि कैसे कैसे स्ट्रेटेजी क्या क्या यूज़ की जाती है, और ज़ारा अगर आज भी अपनी प्रोडक्शन रोक सकता है, अगर कोई नया ट्रेंड आता है तो दूसरी चीज़ों को लेकर प्रोडक्शन रोक के उन ट्रेंड पे काम कर सकता है, 50% वो पहले से लॉक करके रखता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये बिज़नेस जो कंपनीज बड़ी बड़ी हैं इसलिए ही आज इंडस्ट्री में है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए आपकी लाइफ में। ओके, नाउ लेट्स कम टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? देखो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो स्ट्रेटेजी को कैसे मैनेज करना है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, नाउ लेट अस रीड इट। इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शंस विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजीज टू हेल्प अचीव ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, उनको अचीव करने के लिए जो हम डिसीजन लेते हैं या हम कोई भी एक्शन लेते हैं। ठीक है, सपोज आपने बोला कि आपके पास आपने ये प्लान बना लिया था 2 to 3 आवर्स वाला। ठीक है, आप कोस्ट आपने बना दिया कि कोस्ट पढ़ना है, तो आप इसको पढ़ रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो। ठीक है, वो एक्शन आप ले रहे हो और आपने डिसीजन ले लिया कि आप इतने आवर्स उसको पढ़ोगे। तो इन सबको करने के लिए हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजीज इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे 2 to 3 आवर्स आप पहले कोस्ट पढ़ रहे हो, फिर 2 to 3 आवर्स आप दूसरा सब्जेक्ट उठा रहे हो, सपोज FM, और उसके बाद 2 to 3 आवर्स आप वो पढ़ रहे हो OM। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, जो पेपर 9 है। ठीक है, ऐसे कर करके आपने स्ट्रेटेजी बना लिया। तो उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि हम कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Now coming to advantages of strategic management. Advantages of strategic management, first one is identifying the directions. Directions को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका देखते हैं हम। डायरेक्शंस को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टू डिफाइन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। दिस हैज़ टू बी इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। हमें पता होना चाहिए हमें डायरेक्शंस कब मिलेगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से, अगर हमें पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रियलिस्टिक है, मतलब कि हम उसको अचीव कर सकते हैं, हमारा जो गोल है वो रियलिस्टिक है। सपोज करो सपोज क्या करना है, सब कुछ रियल ही है, मैं सपोज बोल रहा हूँ, मेरे को थोड़ा हैबिट है। ठीक है, तो बियर कर लेना उसको। आपको हम कहाँ पे थे, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। अब आपने डिसाइड किया कि आपको CM में एग्ज़ाम्स जो हैं आपके वो पास करने हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं है ना कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पास होते हैं। तो ये रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव है, आपने एक रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव बना लिया है कि आपको अपने CM एग्ज़ाम पास करने हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये बना ही लिया है तो उसी को उसकी डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन मिलेगी आपको कैसे अचीव करना है, उसी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है। आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन, एक आपको डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, दिस हैज़ टू बी इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। और कंपनी का विजन क्या है, इसको हम कंपनी से रिलेट करते हैं तो कंपनी का विजन हमें पता चलता है कि कंपनी को इतने आने वाले 1-2 साल में इतना रेवेन्यू जनरेट करना है या जो भी है। ठीक है, तो उसके साथ लाइन में होना चाहिए ये। Second point is the strategic management provides a base for the organization on the basis of which progress can be measured and on the same basis employers can be compensated. Strategic management जो है एक बेस देता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके बेसिस पे प्रोग्रेस मेजर की जा सकती है कि प्रोग्रेस कितनी हो रही है। ठीक है, एंड ऑन द सेम बेसिस एम्प्लॉयर्स को भी हम कंपनसेट कर सकते हैं कि हमारा काम कैसा चला, हमें पता चल जाएगा स्ट्रेटेजी से, तो उस हिसाब से एम्प्लॉयर को सैलरी दे सकते हैं। ठीक है, आई गेस हाँ, कंपनी एम्प्लॉयर्स को ही तो देती है। ठीक है, सॉरी, एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ कैन बी कंपनसेटेड। यहाँ पे थोड़ा मेरे को डाउट था, सो आई एम करेक्टिंग इट है। ठीक है, एक बार इसको फिर भी चेक कर लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होना चाहिए। नाउ लेट्स कमिंग टू सेकंड पॉइंट, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द मार्केट शेयर एंड ऑल्सो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज़ करते हैं तो चांसेस हैं कि मार्केट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि हमने एक स्ट्रेटेजी बना रखी है तो अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं, तो मार्केट शेयर बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करो इस टाइम पे क्राइसिस चल रहा है, अब लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही होंगी, उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि उसमें उनमें किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है। सो इन द सेम मैनर इनका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। ठीक है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्किल्स हेल्प्स इन टारगेटिंग द राइट मार्केट को टारगेट करेंगे, एंड द एक्सपर्ट्स विल गाइड फॉर बेटर सेल्स एंड मार्केटिंग अप्रोचेस। जो एक्सपर्ट्स हैं वो गाइड करेंगे कि कैसे आप बेटर सेल कर सकते हो और कैसे आप मार्केट को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मार्केट शेयर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू।
Now let's come to better business decision. If you have a proper and clear vision of your company, then having a mission methods to achieve the mission always seems to be a very good idea. अगर आपके पास एक क्लियर विजन है, जैसे आपको CMA एग्जाम्स पास करना है, तो आपके पास उसका एक मिशन होगा. विजन लॉन्ग टर्म होता है, मिशन शॉर्ट टर्म होता है. ठीक है, मिशन मतलब आपने थोड़े थोड़े काम किए, क्या अचीव करने के लिए आप अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, क्या करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए. तो आपका विजन है कि आपको एग्जाम पास करना है, राइट. बट अभी जो उसके लिए आप छोटी छोटी चीज़ें करो, आपका एक मिशन बन जाता है कि आप आज के दिन में आपको 24 घंटे में इतना पढ़ना है. ठीक है, तो एक मिशन है. It turns into a great idea when you decide what is the type of project in that you want to invest your money, how do you plan to invest your money and utilize the time of your employees. ये ग्रेट आइडिया में कब बन जाएगा? ये ग्रेट आइडिया में तब बन जाएगा जब आप डिसाइड कर लोगे किस तरह के प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है. मैं कहूँ, अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, किसमें आप वीक हो. ठीक है, आप कैसे उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे. और आप अपने एम्प्लॉयज़ की बात आ गई तो कंपनी की बात आ गई, तो कंपनी की अगर बात करें तो कैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ का टाइम यूज़ करोगे जिससे आपको उससे बेटर आउटपुट मिल पाए. तो बेटर बिजनेस डिसीजन लिए जा सकते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू, राइट. कम्स टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग. Strategy provides a vision for the future, confirms the purpose and values of an organization. एक विजन मिल जाता है फ्यूचर के लिए कि क्या स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट से आप क्या क्या मतलब स्ट्रेटेजी बना के आप क्या विजन अचीव कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. सपोज करो आपने एक विजन बना रखा था कि आपको अगले साल तक आप एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ऑनर हो. ठीक है, आप अगले साल तक आपने 1 करोड़ का बनाया होता कि 1 करोड़ मेरे को रिवेन्यू चाहिए. टर्नओवर नहीं बोल रहा हूँ, 1 करोड़ रिवेन्यू अलग से बोल रहा हूँ टर्नओवर के ऊपर. और आपने जब स्ट्रेटेजी बनाई तो आपने देखा यार ये तो 2 करोड़ भी जा सकता है. तो एक विजन मिल जाता है फ्यूचर के लिए. ठीक है, और हो सकता है कि कम भी, भाई 50 लाख ही है, 1 करोड़ ना है. ठीक है, तो कन्फर्म्स द पर्पस एंड वैल्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सेट्स ऑब्जेक्टिव्स, क्लैरिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, डिटरमाइन मेथड्स टू लिवरेज स्ट्रेंथ्स एंड मिटिगेट वीकनेस. तो अगर आप एक विजन बना लिया, स्ट्रेटेजी से पता चल जाएगा, विजन बन जाएगा, और उससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया. कोई थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में आपको लगता है कि कंपटीशन बढ़ सकता है. अगर मैं टेलीकॉम कंपनी की बात करूं तो पहले टेलीकॉम कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज थी. आज के टाइम में 2 या 3 कंपनीज रह गई, एयरटेल, आइडिया एंड जियो. ठीक है, जियो ने आते ही सबको उड़ा दिया. तो ये थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स थे एक तरीके से कि आने वाले, अगर पहले से स्ट्रेटेजी बनी होती तो ये कंपनीज जो बंद हुई हैं ये भी बच सकती थी. इनकी स्ट्रेटेजी उस तरह से पक्की नहीं थी क्योंकि इनको पता ही नहीं था. ठीक है, तो क्लैरिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने उस तरह से सोचा ही नहीं था. डिटरमाइन मेथड्स टू लिवरेज स्ट्रेंथ्स, मेथड्स पता है जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ्स लिवरेज होएगी, मतलब अच्छी हो सकती है. एंड मिटिगेट वीकनेस, वीकनेस को कम करना. सो ये 4 पॉइंट थे आपके एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के. ठीक है, आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन. पहला, आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन पता चल जाएगी. इसमें आप अंदर अपने आप भी लिख सकते हो. ठीक है, ये नहीं कि आपको कॉपी पेस्ट ही मारना है. ठीक है, मेन है आपके हेडिंग्स याद करना. और मैं इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्लासेस खत्म होने के बाद बता दूंगा कि आपको किस तरह से लिखना है और क्या कैसे कैसे आप लिख सकते हो. पूरा मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर सेपरेट. तो अभी के लिए हम पढ़ लेते हैं. आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो अचीव हो सकते हो. इंक्रीजिंग मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जब इन्वेस्ट करोगे सही जगह पे तो आपकी मार्केट शेयर भी बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी. बेटर बिजनेस डिसीजन ले सकते हो आप, जो सही जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो सब आपको पता चल जाएगा. क्लियर विजन मिल जाएगा तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, एक फ्रेमवर्क मिल जाता है जिससे आपको थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को आप टैकल कर सकते हो और वीकनेस को मिटिगेट कर सकते हो, मतलब ख़त्म कर सकते हो या इम्प्रूव कर सकते हो, कह सकते हैं. नाउ कम टू डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. द फर्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर डजंट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड. हेडिंग्स तो मैं कह रहा हूँ सेम के सेम लिख के आ जाना एग्जाम में. ठीक है, हेडिंग्स रट जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हेडिंग्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है. तो फ्यूचर डजंट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड, इसका मतलब क्या है? ज़रूरी नहीं हम जैसा सोचते हैं फ्यूचर में वैसा ही हो. डजंट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड मतलब हमने एंटिसिपेट किया था, हमने सोचा था ऐसा होगा बट वैसा हुआ नहीं. तो इट रिक्वायर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू एंटिसिपेट द फ्यूचर एनवायरनमेंट एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर एनवायरनमेंट एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इज़ नॉट ईजी. फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लिया, सपोज बारिश वाली बात होती है, वेदर कंडीशन में कहते हैं कि कल बारिश होने की संभावनाएं हैं. ठीक है, हमेशा वो यही बोलते हैं कि संभावनाएं हैं, दे नेवर सेड कि कल बारिश होगी ही होगी. ठीक है, तो प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इज़ नॉट ईजी. द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेल्स व्हेन द फ्यूचर डज नॉट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड. और अगर बारिश नहीं हुई तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेल हो गया आपका. तो वही चीज़ है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेल हो जाता है यहाँ पर. फ्यूचर के बारे में हम गैस नहीं कर पाते, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते उसको. Second point is complex process. It involves continuous assessment of critical components such as external and internal environments and organizational structure. Continuous assessment चाहिए होता है इसमें. मान लो आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई, अभी के टर्म्स को देखते हुए कि अभी मार्केट में ये कंडीशंस हैं और आने वाले टाइम में वो कंडीशंस चेंज भी होगी ना, तो आपको कंटिन्यूस असेस करना होगा कि
जो भी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में उसके हिसाब से आपको कंटिन्यूस असेसमेंट करना होगा उसका, आपको अपनी स्ट्रेटेजी टाइम टू टाइम चेंज करनी होगी अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनवायरनमेंट। सो इट इन्वॉल्व्स वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, सच एज एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सपोज कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, ठीक है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, ठीक है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे अब मैं सही बताऊँ, अभी कल की बात ले लेते हैं, कल अल्कोहल की शॉप्स ओपन की गई और आज गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% टैक्स लगा दिया लिकर पे, तब भी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो हो ही नहीं रही है, ठीक है, तो 70% टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। तो उसके हिसाब से भी स्ट्रेटेजीज, अभी तो कुछ स्ट्रेटेजी बन ही नहीं पा रही है इतने टाइम में, क्योंकि कुछ बना ही नहीं पा रहे हैं स्ट्रेटेजी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दिस कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड और टू अ चेंज इन वन कंपनी में अफेक्ट अदर एरियाज। अगर एक कंपोनेंट में भी चेंज होगा तो वो अदर एरियाज़ को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। इट कैन बी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव हो सकता है, येस मतलब हो ही सकता है एक्सपेंसिव, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो बड़े बड़े लीगल हायर्स नहीं कर सकती, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हायर नहीं कर सकती, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। There are many organizations in NPO sector that can't afford to hire an external consultant to help them develop their strategy, thus it can be expensive for them। ये लिखा है इसमें कि बहुत सारी नॉन प्रॉफिट सेक्टर हैं जो हायर नहीं कर सकती कंसल्टेंट को अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए, इसलिए इनके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। द लास्ट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट वर्सेज इमीडिएट रिजल्ट। ये हमने वहाँ भी पढ़ा था एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजी में कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन विद लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। Immediate results could not be expected through strategic management. That is why the organization company should always address the immediate crisis prior to allocating resources to the strategic management process। इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। Immediate results could not be expected through strategic management। Immediate results हम expect नहीं कर सकते strategic management से। That is why the organization company, इसलिए कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एड्रेस करना चाहिए इमीडिएट क्राइसिस प्रायर टू एलोकेटिंग रिसोर्सेज, टाइम, मनी एंड पीपल। जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करने से पहले क्राइसिस की सिचुएशन देख लेनी चाहिए, ठीक है, एड्रेस करना चाहिए उस चीज़ को। जैसे अभी हम बोलें तो कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 ने टाइम, मनी, पीपल सब अरेंज किया हुआ है। हमारी देखो सैलरी कई लोगों की नहीं आ रही है, आई एम ग्लैड, फॉर्चुनेटली मेरी आ रही है, ठीक है, तो वो सब कंपनी ने अरेंज किया हुआ है। टाइम, मनी, पीपल, हम घर से काम कर पा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो सब उन्होंने एलोकेट किए हुए हैं रिसोर्सेज। उन्होंने हमें अपना सिस्टम दे दिया, ठीक है, लैपटॉप दे दिए एम्प्लॉयज़ को कि भाई आप ऐसे जाके पढ़ो, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बना ली कि उनके बिजनेस को भी लॉस ना हो और हमें भी कोई इशू ना आए, ठीक है। तो इसको एड्रेस करना इमीडिएट क्राइसिस को प्रायर टू एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ये हेल्प करता है कंपनीज को। बट यहाँ पे इमीडिएट रिजल्ट आप उससे अचीव नहीं कर पाते। जो जितना हम ऑफिस में काम कर पाते तो वो हम घर पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इमीडिएट रिजल्ट उससे नहीं आ रहे हैं। तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में उनको हेल्प ज़रूर करेंगे, बट अभी के लिए उनको उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है जितना पहले हो पाता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं कंपनीज़ में लोग जो बाहर साइट पे जाके काम करते हैं, ठीक है, तो उनके काम वो तो जा ही नहीं सकते, तो वो काम हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट वर्सेस इमीडिएट रिजल्ट वाला पॉइंट आ जाता है, राइट। तो डिसएडवांटेज में हमने क्या पढ़ा, फ्यूचर डजंट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड। फ्यूचर हमेशा वैसा नहीं होता जैसे हम सोचते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कंडीशन असेसमेंट करना होता है, मतलब एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, जैसे मैंने अल्कोहल का एग्जांपल दिया। थर्ड पॉइंट है इट कैन बी एक्सपेंसिव, क्योंकि हायर नहीं कर सकते, कुछ कंपनीज एनपीओ होती हैं नॉन प्रॉफिट सेक्टर वाली, वो हायर नहीं कर सकती कंसल्टेंट्स को। एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वर्सेज इमीडिएट रिजल्ट्स। सो दिस इज इट फॉर इन दिस वीडियो, वी विल बी स्टॉपिंग इट हेयर। We will be starting with strategic development rules, that is types of strategy, from the next video. And till now we have studied, we will summarize in 5 minutes. First of all, we have learned the definition of strategy, that is integrating all the organizational activities and utilizing and allocating the resources to विद द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट सो एज टू मेट द प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव। ये अगर आपसे हो सके तो पहला पॉइंट याद कर देना, मैंने अपने टाइम पे ये वाली लाइन पूरी याद कर ली थी, अगर आपसे पॉसिबल हो तो कर लेना, ठीक है। बाकी स्ट्रेटेजी आप अपने आप लिख ही सकते हो कि नॉलेज ऑफ गोल्स है, इसको आप हेल्प कर सकती है आपको बहुत सारी आपके गोल्स अचीव करने में, ठीक है, और रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए जो भी आपके पास है एंड ऑल दैट। फ्यूचर स्ट्रेटेजी में हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है, वेल डिफाइंड रोड मैप मिलता है और एक अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर को लेके, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, जो स्ट्रेटेजी को अचीव करने में हमारी हेल्प करे, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजी को मैनेज करने में। एडवांटेजेस क्या है, आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या है, आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन मिल जाती है हमें, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, बेटर बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, फ्रेमवर्क मिल जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, फ्रेमवर्क मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है,
फ्यूचर डजंट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट वर्सेस इमीडिएट रिजल्ट्स एंड इट कैन बी एक्सपेंसिव. सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस. कुछ कुछ तो मेरे को भी याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते. सो दिस इज इट, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट रूट्स एंड वी विल कवर द होल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई है, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छा पढ़ा मतलब आपको समझा सकता हूँ, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आगे की वीडियोस में जो भी इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगे कि मेरे को करनी चाहिए वो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है. और दिस इज़ इट. अपने फ्रेंड्स your friends who are studying for strategic management for CMA Inter, do share this video with them. And बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है. एनालिटिक्स में पता चल जाता है, तो शैतानी नहीं, ठीक है. सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी हिट कर देना. So this is it. All the best for your coming examinations.